डीजी का थोड़ा सा रह गया था, प्रिकॉशंस वाइल लोडिंग डिस्चार्जिंग, कॉमन क्वेश्चन रहता है, एंड देन वी विल गो टू द विंड सर्कुलेशन। ठीक है, वो भी इजी है, हाउ दिस वेरियस विंड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड योर मानसून्स, इजी है, एक बार समझ लोगे तो let's start with that little bit part of IMDG what was left. So we were here that what all precautions when loading, ये दोनों तरफ से important है, examination as well as working on the ship. So at least I should know हमें क्या क्या काम करना है, isn't it? So that is the most important part कि यार सबसे पहले तो मेरे को अपनी जॉब आनी चाहिए, and we talk about safety all the time but sometimes we try to shortcut bypass, उससे आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और डीजी कार्गो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेंजरस कार्गो, इसके लिए द IMDG कोड वेरी वेल रिटन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, व्हाट इज द लेआउट, हाउ टू सी दिस बुक्स एंड स्पेशली व्हेन यू आर ड्यूटी ऑफिसर, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस आई विल टेक। तो यही आपको क्वेश्चंस में आएंगे, यही हमें पढ़ना है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव केप्ट द वॉचेज, जिन्होंने कंटेनर शिप्स किए हैं, जनरल कार्गो, if you have carried DG, so I hope you are taking all these precautions. सबसे पहली चीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट कम्स क्या, वंस आई शुड नो कि कार्गो क्या लोड करना, पहले तो कार्गो पता होना चाहिए, isn't it? आप वॉच पे आते हो, so I should know what cargo I am loading. So DG का सिंपल है, क्लासिफिकेशन, isn't it? So the cargoes are classified into different groups, different classes. So वहीं से मेरे को पता लग जाएगा if I am loading class 3, 4, 5, 7 and I know what these cargoes are, इनकी क्या properties हैं, क्या hazards हैं इनके साथ. So this is what says once confirmed to load, the shipper's declaration must be obtained. Of course the shipper is the person जो cargo आपको, इसका cargo हमको transport करना, and he knows his cargo best, he gives all the details. Example, correct technical name, UN number, class as per the IMDG code, container number, net weight, and statement that the goods have been packed properly. Because we are not packing, we don't know, we can't see inside the containers. So nowadays it is obligatory, it is a responsibility of the shipper also to give you statement that it is properly packed as per the code, so that nothing happens at sea. अब हमने देख लिया कि yes, I know these are the cargoes to be loaded. Then from the IMDG code, we can study the properties, precautions, any special precautions required if I am not aware of. There are so many cargoes in the world. So these books can give you all the properties and hazards. And उसके साथ important हो जाता है also, I will identify the EMS and MFAG, emergency schedule, no emergency schedule. If roughly you remember, in the EMS guide in the supplement, it basically tells me that how to deal with the emergencies arising out of these dangerous cargoes. Can be spillage, can be fire, and now we have seen yesterday how to look into this into the supplement. तो आपकी थर्ड बुक है supplement, उसमें उसने EMS guide दी है, emergency procedures while carrying these goods, and मेडिकल फर्स्ट एड गाइड, उसके भी टेबल्स हैं, आपने देखे फ्लो चार्ट एंड देन टेबल्स, किसी को कुछ हो जाता है, somebody inhales the vapors, और कोई कार्गो उसके ऊपर स्प्रे हो जाता है, कुछ हो जाता है, so we can refer to this. So ये आपकी as a duty officer you should be prepared. So from EMS MFAG find out action to be taken in case of various emergencies and medical aid, and if any special equipment such as medicine, safety equipment, gas detector, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए यार ये इक्विपमेंट है कहाँ पे है. सपोज इफ आई नीड टू एंटर सम स्पेस, कहीं पे जाना है,
किसी को कुछ हो गया, so I should be able to find out these detectors. I should know how to, of course most of us oxygen analyzer, toxic gas, papers, कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हैं. So before you enter, these things are most important. Then plan the storage as per the code. Of course आपको storage plan दे देंगे chief officer. So we have to see when we are loading the cargo that these DG cargos or DG containers go in the proper slot where it is planned. यानी कि कहीं और चेंज हो गया तो it is again सारी प्लान गड़बड़ हो जाएगी. So containers of different classes to be segregated. Next आपने भी थोड़ा ध्यान देना, ये नहीं कि प्लान बना दिया, अच्छा सर ठीक है, प्लानर ने दी, चीफ ऑफिसर ने दी, so they must have checked. So as a second officer, third officer, आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई विल चेक फॉर द सेग्रीगेशन दैट दीज कार्गोज आर प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड एज पर IMDG कोड. वो भी हमने देख लिया सेग्रीगेशन टेबल, वेरी इजी, चैप्टर 7 में और पार्ट 7 वॉल्यूम 1 में आपके पास होता है. अदरवाइज छोटे छोटे आपके लैमिनेटेड कार्ड्स आर ऑलवेज देयर इन द शिप, सो यू कैन सी दिस, रेफर दिस केयर, कौन सी क्लास किसके साथ है, गलत तो नहीं हो रहा कुछ. एक sometimes oversight हो जाती है, some people can make mistakes, so if you are there to correct, so we can save anything. Prior loading, ensure all emergency equipment in ready state, most important. कि जैसे अब आपको पता लगा कि यार we are going to load DG cargo, so of course emergency equipment we all know today emergency equipment is at any time it is in ready state, good condition. ये तो है नहीं कि जब हम तो चाहिए तभी हम उसको देखेंगे. Ensure container is stored in planned slot, properly marked and labeled. ये सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका है कि ऑफ कोर्स बाकी आपके पास प्लान भी आ गई, सब चीज़ आपने देख ली. अब लोडिंग के टाइम में यू आर द पर्सन हु इज एक्चुअली ऑन द ग्राउंड. यू हैव टू सी दिस कंटेनर इज नॉट डैमेज एंड इट इज प्रॉपरली मार्क्ड एंड लेबल्ड. अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके साथ? इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मार्क्ड, अगर इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा तो क्या करोगे? इन्फॉर्म करेंगे. पता नहीं उसमें क्या है. किसको इन्फॉर्म करेंगे? अगर लोडिंग से पहले या लोडिंग के टाइम पे पता चल रहा है तो शोर पार्टी को पहले इन्फॉर्म करेंगे या कार्गो लेंगे नहीं, ऐसा कुछ. हाँ देखिए ना, इमेजिन योरसेल्फ, नाउ यू इमेजिन योरसेल्फ कि अभी तो आपके हैप्पी डेज आर गॉन, यू आर अ थर्ड ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर है. उसका पिक्चर निकालते हैं, नोट करते हैं, लॉग में लिख सकते हैं सर. हाँ जी, पिक्चर निकालते हैं या फिर लॉग में उसको नोट डाउन करते हैं, या फिर जब हमें मैनिफेस्ट मिलती है तो उस पर हम नोट डाउन करके वहाँ पे फाइनल या स्टैम्प जो भी हो. या ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया बट कंटेनर के ऊपर लेबल तो है नहीं. और लेबल का पर्पस क्या है? देखिए आपके माइंड में क्या आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दिस लेबल? क्विकली जो आपके मन में आता है इन अ वेरी सिंपल वे. सर वो कौन सी क्लास का है? या सपोज आपको ये पता होना चाहिए, isn't it? एवरीबॉडी शुड नो कि ये जो कंटेनर है दिस इज अ डेंजरस कार्गो. उसके बाद आ जाता है कि हम ये कौन सी क्लास का है. अगर उसके ऊपर लेबल नहीं है, नोबडी विल कम टू नो. आप भी चल रहे हो, विल यू कम टू नो दैट ये डीजी कार्गो? श्योर पीपल ये नहीं पता होगा कि वो डेंजरस है या नहीं, हम तो सोचेंगे नॉर्मल है. देन सी द इम्पोर्टेंस. अब किनारा वाले जो हैं स्टीविडोर्स हैं, आपने कुछ उस पे कंटेनर पे मार्किंग नहीं दिख ली, वो कहेगा ठीक है नॉर्मल कंटेनर ही में स्टार्ट स्मोकिंग, तो कुछ भी करना शुरू कर दे. क्रू है, अब उसको भी नहीं पता, इवन क्रू क्या, इवन एनीबॉडी, यू आर कैरिंग 10,000 कंटेनर्स, किसको कौन सा याद होता कौन सा कंटेनर डीजी है? इफ द मार्क, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप ड्यूटी ऑफिसर हो, अगर आप लोडिंग कर रहे हो और आपने देखा उसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका होना चाहिए कि यू गो टू द स्टीविडोर, जो भी उसका इंचार्ज है, कि भैया देखिए इसके ऊपर लेबल नहीं है तो प्लीज पुट अ लेबल. सर हमारे स्टोरेज प्लान में मार्क्ड होगा कि इस वाली रो बे में वो आएंगे डेंजरस गुड्स, डेंजरस कंटेनर? डेफिनेटली कंटेनर प्लान में लिखा होता है कि सारा का सारा जो आपका कंटेनर्स में, देखो मैंने आपको प्लान दिखाई तो उस पर लिखा होता है कौन सी क्लास का कार्गो है, ये क्लास 3, क्लास 4, वो प्लान में दिखाएगा. वो तो हमने देख लिया कि ओके एज पर द प्लान आई विल लोड इन व्हाटएवर बे स्लॉट, जहाँ पे भी आना है, दैट इज इजी, दैट इज दे विल आल्सो लोड एज पर द प्लान. बट द बिग क्वेश्चन कम कि व्हेन दे आर लोडिंग,
and now you see the container कि यार उसके ऊपर तो कोई लेबल ही नहीं दिख रहा. Now as a duty officer आपके मन में क्या आता है? What action will you take? ये बच्चे वेरी प्रैक्टिकल काम है. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ योर ड्यूटी ऑफिसर, आप क्या एक्शन लोगे? अब वो तो है नहीं कि कैरी इट एज अच्छा मैं ड्यूटी ऑफिसर को बोलूंगा या मैं चीफ ऑफिसर को फोन करूंगा, देन व्हाट इज द यूज? फिर आपको इतनी एग्जाम, इतना टफ एग्जाम पास करके इतनी मेहनत करने के बाद अगर चीफ ऑफिसर हो तो एबी भी कर सकते हैं. तो एबी आल्सो कैन सी कि यस कंटेनर पे मार्किंग नहीं है. हाँ जी, सर लेंगे नहीं कार्गो सर तब तक. अगर आप बोलते हो कार्गो नहीं लेंगे, दैट मीन यू आर स्टॉपिंग द कार्गो. अगर आपने कार्गो बंद कर दिया तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है जेब में, द बेल्स विल रिंगिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सर फोरमैन को बोलेंगे अगर वो लेबल नहीं पुट कर पाया वो या कुछ टाइम में हमें हेल्प नहीं कर पाया, उसका रेजोल्यूशन नहीं निकाल पाया, तो सर चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देंगे. फिर वो आगे अपने फोरमैन से बात करेगा. अगर वो तब भी नहीं कर पाया तो फिर थ्रू द मास्टर एजेंट को ईमेल वगैरह जाएगी. काम बढ़ जाएगा क्योंकि कंटेनर तो लोड हो ही चुका है सर. फिर मास्टर भी पिक्चर में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये देखिए ना, अभी इससे पहले ये बच्चे, आई वांट यू व्हेन यू आर अ ड्यूटी ऑफिसर यू शुड बी अ थॉरोली नॉलेजेबल ड्यूटी ऑफिसर. कि आपको सबसे पहले पता है कि हाँ यार इस लेवल का पर्पस क्या है. इट इज़ बेसिकली टू आइडेंटिफाई फॉर एवरीवन दैट यार दिस कार्गो इज डेंजरस. अब ये नहीं है, अब मेरे मन में इमीडिएटली आता है इफ आई एम द ड्यूटी ऑफिसर, चाहे मैं आपके लेवल पे हूँ, कि यार हाउ टू नाउ आइडेंटिफाई दिस कंटेनर, हाउ टू टेल अदर पीपल. तो उसके लिए सिंपल है कि आई टॉक टू द स्टीविडोर का जो इंचार्ज है, वो कहेगा यार दे आर लाइक ट्रांसपोर्ट. आपने अपना कार्गो भेजना है, कार्गो रखा, उसने लेबर डाली, उठा के आपका कार्गो उन्होंने शिप में डाला. वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. चलो गुड, आपके पास नहीं है, देन आई विल गो टू द शिप्स ऑफिस. क्यों? एज ऑफिसर मेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए कि नॉर्मली वी कैरी दीज स्पेयर प्ले कार्ड्स. ओके, बंद कर लीजिए अपना माइक, देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस कमिंग इन. पर सर हम खुद से प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे ना उस वक्त. हैं? खुद से नहीं लगाएंगे ना, हमें पता नहीं उन्होंने कंटेनर सही वाला लोड किया या नहीं किया. मतलब उन्होंने पहले से लेबल लगा के नहीं दिया कोई. देखो बच्चे, आपके पास कंटेनर नंबर है. कंटेनर नंबर की, एक तो ये माइक थोड़ा बंद करेंगे, किसका है ये माइक? एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास जब प्लान आएगी तो उसमें कंटेनर नंबर भी होता है. वो तो डाउट है नहीं, तो चेक द कंटेनर नंबर. ठीक है, मार्क नहीं है, कंटेनर नंबर इज मैचिंग. वो कंटेनर नंबर के ऊपर आपकी लोडिंग प्लान में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल होता है, कौन सी क्लास का कार्गो है, इसका कितना वेट है, हाउ मेनी टन्स ऑफ कार्गो. खुद लगाने से पहले सर हम चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ है. सुनिए ना, सुनिए, आप इमेजिन कीजिए, वही तो कह रहा हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए बी क्या हो गया. वो तो ए बी भी काम कर सकता है वैसे, यस और नो, कि उसने भी देखा, उसको मैं खड़ा कर देता हूँ कि ठीक है ये कार्गो देखते रहना, नहीं होएगा तो मेरे को फ़ोन कर देना. अब मैंने ये डिफरेंस बताना है कि नहीं यार मैं सेकंड ऑफिसर हूँ या थर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे में फ़र्क है, मैं पढ़ के आया हूँ. आपने इसकी ग्रेविटी समझ ली है कि यस नहीं भाई, अगर इसके ऊपर मार्किंग नहीं है तो इट इज़ डेंजरस फॉर द क्रू, फॉर एवरीबडी, बिकॉज दे डोंट नो दिस कार्गो इज डेंजरस. अब मैंने रिक्वेस्ट की उसको कि देखिए भैया इसके ऊपर मार्किंग नहीं है, प्लीज़ इसको आप देखिए, इसको लेबल लगाइए. अगर उसके पास होगा लगा देता है, वेरी गुड. अब लेबल की कंडीशन क्या है, हमने अभी कल पढ़ा था, एज पर IMDG व्हाट इज द कंडीशन. 4 साइड्स, पोर्ट, स्टारबोर्ड, फॉरवर्ड, आफ्ट, ऑल द 4 साइड में लेवल होने चाहिए. आपने ये पढ़ा है, यही हमने प्रैक्टिस करनी है कि यार चारों साइड में होने चाहिए. अभी कंटेनर की हो सकता है 3 साइड जो हैं वो दूसरे कंटेनर से छुप जाए, एक साइड ही दिखे मेरे को. ये भी नहीं है कि लेवल लगा हुआ है एक, पर जब उसने कंटेनर 2 कंटेनर जोड़े वो आपस में जुड़ गए, लेवल तो बीच में आ गया. अब आपने देखा था लेबल तो लगा है, बट नाउ आई कैन नॉट सी कि जिस तरफ लगा था, जिस साइड पे लगा था, वो साइड तो दूसरे कंटेनर के साथ आ गई. अच्छा, यही पढ़ने का मतलब है, इसको रट के हमने लिखना, एग्जाम नहीं पास करना. यही हम कल देख रहे थे कि जब हमने देखा है उसका लेबलिंग का, इट शुड बी रेडीली विजिबल, लेजिबल. और सर अगर कंटेनर लोड हो गया और उसके बाद ऐसे 2 साइड या 3 साइड छुप गई तो फिर उस जगह पर पेस्ट कैसे करेंगे? सुनिए ना, सुनिए, अभी देखिए, आप थोड़े तो इंटेलिजेंट हो, आपका ब्रेन क्या कहता है, व्हाट योर इनोवेशन सेज. एज अ ऑफिसर यू हैव टू यूज योर इनोवेशन. हर चीज के लिए आपके पास रेडीमेड आंसर तो नहीं होगा, isn't it? दैट इज द आइडिया कि अब आपने देखा है
ये तो वैसे सिंपल चीज है। अब मैंने देख लिया कि ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं ऑफिसर हूँ, मैं देखता हूँ, अच्छा भी हो, चलो लगा था छुप गया है, कुछ भी हुआ, अभी आपने वो कंटेनर, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी देयर व्हेन वी आर लोडिंग डीजी कार्गो। वैसे तो मैं उसको कहता हूँ कि भैया एक लेवल और है तो इसको लगा दे, नहीं है, फॉर दैट टाइम आई कैन आस्किंग कि अरे इस कंटेनर को दोबारा से उठाओ, जो अंदर क्या है, जो साइड मेरे को दिख रही है, मैं उस लेवल को दूसरी तरफ भी लगा सकता हूँ। अभी तो हेवन हैज नॉट फॉलन डाउन, एक कंटेनर लोड हुआ है ना, उसको क्या भी, ये देखो मार्किंग तो दिख ही नहीं रही, दे ऑल्सो नो, दे आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट। अब प्रॉब्लम मार्किंग चारों तरफ कुछ भी, चार पास तो है नहीं। अब ठीक है, मैंने भी देखा कि अपने शिफ्ट में मैं जाता हूँ ऑफिस में एज अ सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, वर्किंग विद चीफ ऑफिसर कि हाँ यार कहीं स्पेयर, चलो किस चीज की नॉलेज है, चेक किया, स्पेयर हुए, उठा के लगा दी। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है वो वाला लेवल ना हो, उस क्लास का लेवल ना हो शिप। तो आपको क्या करना है, अपने अपने सारे के सारे वट एवर मीन्स यू कैन ट्राई, यू ट्राई आउट ऑल द मीन्स कि भाई उससे बात कर ली, चेक कर लिया, नहीं है, देन यू कुड टेल चीफ ऑफिसर की सर मैंने ये चीज चेक किया है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इस कंटेनर के ऊपर मार्किंग नहीं है, ना उसके पास लेवल है, ना हमारे पास शिप पे लेवल है नाउ, एंड आई एम नाउ प्लानिंग स्टेंसिल, देखो हमने पीछे पढ़ा था, रात को तो लोडिंग को तो रोक नहीं सकते, शिप तो नहीं रुकेगा, काम तो चलना ही है, देन यू काम टू सर एंड देन यू से ओके, सो देन यू से, अब आइडिया क्या है कि यस व्हेन वी, जी सर, okay, so this is the idea that at least we will try some means कि फॉर अ टाइम बिंग एटलीस्ट उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर ना तो पेंटलेस पेंट से लिख सकते हो, ना उसको डिफेस कर सकते हो, हम किसी टाइप का भी कोई भी पेपर, कोई भी चीज वहां पे एटलीस्ट मार्क करें टिल द टाइम, आप कैप्टन साहब को इन्फॉर्म करो, एजेंट को इन्फॉर्म करो, प्लानर को इन्फॉर्म करो, बाय द टाइम ही ब्रिंग्स एटलीस्ट दैट कंटेनर इज नोन, एज अ ड्यूटी ऑफिसर हमने ये करना है कि यस इसकी मार्किंग देखनी है, एंड देन इन कंसल्टेशन विद चीफ ऑफिसर की सब हमने सब ट्राई कर लिया, ये नहीं कि सीधा ही है, सीधा ही एकदम से उठे जाके चीफ ऑफिसर को उठा दिया 1 बजे रात को। तो मेरा फर्क होना चाहिए कि यस आई एम ऑफिसर सर, ठीक है मैं ये ट्राई करता हूँ, हो सकता है यहाँ बात बन जाए, हो सकता है ऑफिस में पड़े हों, किसी को पता हो आपके साथ कैरिट है, यू हैव बीन वर्किंग, पोषण है, किसी को भी पता हो, चलो देखें। हाँ, ये सब करने के बाद व्हेन यू फेल देन आई विल गो कि भाई चलो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्यूटर से निकाल के कोई स्टिकर लगाते हैं, दिस इज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, so that thing is known that this cargo is dangerous till we get a proper level. Otherwise आजकल पर्सनल फाइन है, if you go to especially European ports, Bremenhaven, they put 100 euro personal fine on the duty officer if the safety people come and they see there is no sticker on the DG cargo. I have faced that. तो आपने ये चीज देखनी है, कुछ ना कुछ आपने उस पर लगाना है जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, देन यू कैन गिव एक्सप्लेनेशन कि दिस इज व्हाट आई ट्राइड। अभी अफ्रीका में जहाज लोड हो रहा था, वहाँ खाना नहीं है तो कहाँ से आपको लेवल मिलेगा, देन विल सी नेक्स्ट पोर्ट, कहीं ना कहीं से कंपनी हो सकती है कैसे आपको भेजे, उसको तो प्रॉपर लेवल लगा देंगे,
So this is very important. Important क्यों है? You know, any danger can take place. कल को कोई बंदा काम ही करने जाता है, हम अपना वेल्डर को ही भेज देते हैं काम करने के लिए, हाँ भी रेलिंग टूटे वहां कर लो, he also will not know that this is a DG cargo. I hope understood. So ये छोटी छोटी बातें आपने कि सर आई विल डू दिस, और इसमें लिखा भी है, कोड भी कहता है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, एंड ये चीज मैं करूंगा, तब आपका जो है यस सारे कहेंगे कि हाँ यार ड्यूटी ऑफिसर का मीनिंग अभी स्लोली ऑफ कोर्स यू विल लर्न, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ जी ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं भी अपनी इंटेलिजेंस ट्राई करता हूँ, बट वी कैन डू। हाँ, फाइनल डिसीजन लेने से पहले, कार को रोकने से पहले या कुछ करने से पहले, देन यू हैव अ चीफ ऑफिसर के साथ दिस इज द प्रॉब्लम, 5 मिनट 7 मिनट के लिए नोबडी विल माइंड, एंड द स्टीवियर आल्सो विल एग्री कि यस यार ड्यूटी ऑफिसर इज वेरी कॉशियस एंड यू गॉट अ वैलिड रीजन, यस इट हैज टू बी मार्क्ड, पीपल शुड नो। चलो ठीक है, विजुअली चेक द कंटेनर फॉर एनी डैमेज, लीकेज, हीट एमिशन, स्मोक, कुछ भी आ रहा है, दैट्स व्हाई द फर्स्ट एंड मोस्ट प्राइमरी थिंग इज कि सर व्हेन आई एम लोडिंग डीजी कार्गो द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड बी इन अटेंडेंस, ताकि आप उसको देख सको, कुछ भी कर सको, हाँ जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लोडिंग हो गई, नेक्स्ट जॉब। देन सिक्योरिंग, यहाँ पे इसकी सिक्योरिंग भी बराबर होनी चाहिए। प्रिपेयर द डिटेल लिस्ट ऑफ डीजी एंड मार्क देयर लोकेशन इन द स्टोरेज प्लान, यू हैव बीन वर्किंग, जो कंटेनर शिप्स पे काम करके आए हैं, कि पूरी की पूरी डीजी प्लान निकालते हैं, वी पुट इट ऑन द नोटिस बोर्ड्स फॉर एवरीवन्स नॉलेज that with this is the DG, these are the various classes of DG, and these are the locations. Everyone on the ship should know. There's no point people are just happily walking and smoking, thinking no DG cargo on board. And gangway के पास भी no smoking जो है, normally of course as a chief officer they will do it, but even as a duty officer if you find the first thing when you are carrying DG on board, मेन थिंग आपके पास सबसे पहले आती है कि नियर द गैंगवे लाइक टैंकर्स, बल्कहेड पे एक बड़ा बड़ा नो स्मोकिंग, एंड सेकेंड थिंग जो आपकी ये डीजी प्लान है, दिस डीजी प्लान शुड बी इन दैट फायर वैलेट, इसकी एक कॉपी जो है कंटेनर शिप्स पे नॉर्मली वी पुट इट इन द फायर वैलेट। फायर वैलेट आई होप ऑल ऑफ यू नो, नियर द गैंगवे रेड कलर का वो होते हैं सिलेंडर्स, आई होप यू नो दिस कार्गो दिस फायर वैलेट्स, यस isn't it? अब आप थर्ड ऑफिसर जाने वाले हो तो आपके अंदर आ जाएगा वो चीज, उसके अंदर आपकी फायर प्लान होती है, क्रू लिस्ट होती है, एंड साथ में ये इफ यू आर कैरिंग डीजी अपडेटेड डीजी प्लान, ये नहीं कि पिछली वॉइस की चल रही है तो चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इन यूरोपियन यूएस पोर्ट्स दी शोर पीपल, सेफ्टी पीपल, कार्गो ब्यूरो पीपल कम एंड दे आस्क यू दीज क्वेश्चंस एंड दे वोंट आस्क यू, आप तक तो बाद में पहुंचेंगे, दे विल आस्क द एबीज, यू हैव मिस्टर एबी, यू हैव डीजी कार्गो ऑन बोर्ड, अगर वो बोले मेरे को आई डोंट नो, उसको तो वहीं से वो पकड़ा देगा €100 एंड साथ में वो लिख देगा शिप रन बाय इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, उतारो इसको, इट इज डेंजर टू द पोर्ट। तो उनको भी आपने ट्रेन करना है, फिर वो ये चेक करेगा इफ यू हैव अ डीजी ऑन बोर्ड कैन यू शो मी द प्लान, द एबी शुड नो दैट द प्लान इज देयर इन द फायर वैलेट, कि सर इसको खोलिए इसके अंदर प्लान है लेटेस्ट वाली। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये जो डीजी की जो लोडिंग अनलोडिंग है, दिस इज लिटिल स्पेशली केयरफुल। सो देन कैरी आउट रेगुलर ड्रिल्स, इंस्ट्रक्ट द क्रू मेंबर्स रिगार्डिंग एक्शन टू बी टेकन, नाउ यू नो। अब आप सब पढ़ रहे हो, एग्जाम दोगे, पास हो गए, वही चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। आप ड्रिल्स करते हो, कोई भी ड्रिल करते हो, उसमें क्रू को बताना है। आई थिंक नॉर्मली वी हैव दिस ड्रिल आल्सो इन केस डीजी कंटेनर ऑन फायर और हैजमैट ड्रिल एंड ऑल दैट, सो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पीपल, जो आपने पढ़ा शेयर द नॉलेज कि भाई व्हेन वी गो शिप पे ऐसा ऐसा काम करना है, कोई आके पूछे यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो ये सब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, नहीं तो आपको भी पैसे देने पड़ेंगे, पर्सनल फाइन। प्लस nowadays people are interested how to defame somebody, इसको काम नहीं आता, ऐसा चांस नहीं देना किसी को। check lashing regularly, obtain the weather reports, and then of course during the sea watches also you have to see कि यार मेरे शिप में डीजी कार्गो है, अप्रोक्सीमेट आइडिया आपके पास है, बिकॉज आप ब्रिज पे भी एक कॉपी ऑफ प्लान लगा सकते हैं। ये नहीं कि शिप इज रोलिंग हैप्पीली एंड आप योर लिस्ट बॉर्डर कैप्चा को चाहिए सर एक्सेसिवली रोलिंग है, वी हैव डीजी कार्गो, ये कंटेनर है, कुछ भी हो सकता है अंदर में, बॉटल्स हो, क्या हो, हमें क्या पता। ओके
And then comes the reporting of incidents involving dangerous goods. So when an incident takes place involving the loss or likely loss overboard of dangerous goods, तो कई बार होता है बैड वेदर हुआ, कार्गो शिफ्ट हुआ, वो भी किनारे पानी में जा सकता है. Sometime for the safety of the ship, we may have to abandon, we may have to throw this cargo just for to save the ship. So then कैप्टन की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अंडर चैप्टर 7. ये भी आपको कोई पूछे कि यस सर अंडर 16 चैप्टर 7 इट इज द obligation on the ship to report particulars of such incident without any delay to the nearest coastal state, and report shall be drawn up based on the उसकी गाइडलाइन कैप्टन साहब के पास सबको होता है कि कैसे इन्फॉर्म करना है, क्या क्या इन्फॉर्म करना. एंड इन द इवेंट ऑफ अ शिप रेफर्ड टू इन अबेंडन हो जाता है, और इन द इवेंट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम सच अ शिप बीइंग इनकम्प्लीट अनऑब्टेनेबल, ओनर चार्टर मैनेजर ऑपरेटर ऑफ द शिप और देयर एजेंट shall to the fullest extent possible they also are under obligation that they have to report, they have to tell. कई बार होता है कंटेनर्स, डीजी कंटेनर्स पानी में गए, कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है. And duty officer when he discovers an incident or accident has to immediately raise the alarm, inform the master regarding the same. विच आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर कि कुछ भी है, कोई कंटेनर लीक करता है, लिक्विड है, कुछ भी है पानी में चला जाता है, यू आर नॉट थ्रोइंग इट बट एनीथिंग कैन टेक प्लेस. तो उसके लिए भी आपने इसको इसी तरह से करना है. द क्रू ऑन डेक शुड बी द फर्स्ट टू रेंडर असिस्टेंस एज वेल एज स्टार्ट द क्लीन अप ऑपरेशंस, ट्राई मिनिमाइज द इंसिडेंट अंडर सुपरविजन ऑफ ड्यूटी ऑफिसर एज पर गाइडलाइंस लेड डाउन फॉर दैट कार्गो. आपने EMS पढ़ा है, इमरजेंसी शेड्यूल में क्या क्या करना है आपने पढ़ा है, तो क्रू इज नॉट गॉन थ्रू दिस. सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाउ विल यू रिपोर्ट दिस. फिर आपने ये रिपोर्टिंग है कि जाता है, देन यू टेल चीफ ऑफिसर टेल मास्टर, एंड देन किसको इन्फॉर्म करना है, दे विल इन्फॉर्म. तो आपकी भी है कि इमीडिएटली फर्स्ट उसको रेस्ट्रेन करें ताकि वो कंटेन करें, ताकि वो शिप से बाहर ना जाए. सो ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. और इसमें एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाट इज लिमिटेड क्वांटिटीज एंड व्हाट इज एक्सेप्टेड क्वांटिटीज. ठीक है, सो समथिंग कॉल्ड एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज एंड समथिंग इज कॉल्ड लिमिटेड क्वांटिटीज. सो डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड क्वांटिटी एंड एक्सेप्टेड क्वांटिटी इन IMDG कोड. लिमिटेड क्वांटिटी specifies the size of small packings. So basically क्या, sometime you carry this DG. अभी जैसे आपके aerosols हैं, deodorants हैं, छोटे छोटे cans होते हैं. So if these packings are small packings हैं कि आपने 10 या 12 पैकिंग जो हैं एक बॉक्स में डाली हुई हैं, उनके लिए थोड़े से रूल रेगुलेशन थोड़े से lenient हैं. If it is, that is called the limited quantities. If these DGs are packed in limited quantities, फिर उसमें थोड़ी सी exemptions भी हैं. तो लिमिटेड क्वांटिटी स्पेसिफाई है, मेरे को कहाँ से पता लगेगा कौन सा कार्गो जो है, हाउ मच लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी देयर और व्हाट इज लिमिटेड क्वांटिटी. सो लिमिटेड क्वांटिटी स्पेसिफाइज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी इन द इनर पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग दिस डीजीज अंडर लिमिटेड क्वांटिटी. इनर पैकिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, डिओड्रेंट एग्जाम्पल. अब वो 12 या 24 मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाले हैं, फिर उसको कंटेनर में डाला, सो उसके लिए थोड़ी एग्जम्पशंस भी हैं. So in IMDG code look for the dangerous goods. So आपकी जो DGL लिस्ट है उसका कॉलम 7A में देखिए, वो आपको वहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी दिखा देगा. इट विल लुक लाइक दिस. ये आपकी DGL है, डेंजरस गुड्स लिस्ट. इट लुक्स लाइक दिस, इजंट इट. कॉलम 1 2 3 4 5 6, ये 7A है. यहाँ पे आप देखिए इस कार्गो के अगेंस्ट उसने लिखा है 0. इथाइल प्रोपेनेट के अगेंस्ट लिखा है 1 लीटर. So this is giving the limited quantities in the inner packings. Okay, so inner packing में 0 लिखा तो उसका क्या मतलब हुआ? Anybody? कोई लिमिटेशन नहीं है सर. कोई लिमिटेशन नहीं है मीन्स जितना मर्जी कैरी करो. नो देखो, लिमिटेड क्वांटिटी मीन्स है कि ये जो आपने छोटी छोटी पैकिंग्स बनाई हैं, इस कार्गो की मैक्सिमम इज 1 लीटर. इससे ज़्यादा बड़ी पैकिंग नहीं होनी चाहिए. आप उसमें 1.2 लीटर या 1.3 लीटर नहीं डाल सकते, फिर आपको ये लिमिटेड क्वांटिटी की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. इफ इट इज रिटन 0, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कार्गो कैनॉट बी कैरिड इन लिमिटेड क्वांटिटीज. ओके, if the limited quantity is mentioned as 0, this means that this DG cannot be carried as limited quantities.
अब आपके मन में भी आएगा यार मैं 1-1 लीटर के ये कैन क्यों भर लेके चलूँ, 20 लीटर का सीधा ही एक कैन क्यों ना भर दूँ, छोटे छोटे कैन भरेंगे, कॉस्ट भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है, इज़न्ट इट। सो शिपर है, अगर आपने अपना कार्गो भेजना है तो आप कहोगे सर 1-1 लीटर मैं क्यों करता हूँ, मैं सीधा 20 लीटर। तो उसने यहाँ तो एक लिमिट दे दी। अब ये जो लिमिट है 1 लीटर की, आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आएगी, बट इसके साथ फायदा क्या होता है, ये आपको थोड़ी एग्जम्पशन मिलती है। लिमिटेड क्वांटिटीज में आप क्या कर सकते हो, इसको सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं होती। इफ द कार्गो इज इन लिमिटेड क्वांटिटीज, एग्जांपल क्लास 3 and 4 cannot be stored together in the same container, but if they are in limited quantities then they can be stored in the same container। एंड फिर आपको ये लिमिटेड क्वांटिटी वाले रूल रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे कि 1-1 लीटर का है, मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। तो सिमिलरली एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज में भी सर जीरो वाले का क्या मतलब है? जीरो मतलब दिस कार्गो कैनॉट बी कैरिड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। मतलब सर जितना मर्जी कैरी करें ना, चाहे 50 लीटर का डब्बा हो चाहे 20 लीटर का हो। हाँ, बट फिर इसको जो रूल रेगुलेशन है ना, फिर आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कार्गो लिमिटेड क्वांटिटी में कैरी करते हो तो यस, उसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। फिर अगर एग्जांपल हो क्लास 3 एंड क्लास 4 को कहता है कि दे कैन नॉट बी स्टोर टुगेदर। अब मेरे पास एक कंटेनर है 20 फीट और 40 फीट, अब उसमें मैं ये दो क्लासेस डालना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्लास 3 एंड क्लास 4, बट मेरे को IMDG कोड अलाउ नहीं करता 3 and 4 मस्ट बी इन डिफरेंट बॉक्सेस। तो मेरे को दूसरा कंटेनर हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा जाएगा, प्लस ये कंटेनर खाली जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि चल यार इसी पैकिंग को मैं छोटी छोटी पैकिंग में बना के एक बड़े बॉक्स में डाल देता हूँ, इज़न्ट इट। तो उसने यहाँ पे मेरे को ये चीज़ दे दी कि यहाँ पे ठीक है इतनी डाल सकते हो और साथ में 1 लीटर तक की होनी चाहिए। फिर उसने साथ में ये लिखा भी है कि मैक्सिमम साइज ऑफ द आउटर पैकिंग, इनर पैकिंग तो 1 लीटर है, बट ये भी नहीं है कि आप 1 लीटर का एक बॉक्स में 100 कैन डाल दो। तो वहाँ पे भी है कि जो आउटर पैकिंग है, जैसे आपको बताया कि आपके जो ये डिओड्रेंट कैन्स हैं आपने कार्डबोर्ड बॉक्स में डालने हैं, तो उसकी भी लिमिट है, वो 30 kg या 20 kg से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उसका वेट। तो दिस इज, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है समटाइम, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि यार लिमिटेड एंड एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज क्या होती है। सो सेम इज एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज क्या हुई, उसका मतलब क्या जो ब्रैकेट में श्रिंक 20 kg लिखा है, या 20 kg इफ श्रिंक पैक्ड, मतलब अगर वो बहुत टाइटली पैक किया, श्रिंक पैक इज मशीन पैक्ड होता है जिसे कहते हैं। फिर ओनली 20 kg आउटर पैकिंग जो है उसका वेट 20 kg होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज क्या होगी, कहाँ से मिलेगी, कॉलम 7B में। वहाँ पे भी आपको कोड मिलेगा लाइक E0 and E1। These codes signify maximum quantities in the inner and outer packings for that DG to be carried under exempted quantities। तो यहाँ पे भी उसने देखो ये लिख दिया E0 not permitted as exempted quantity। कोड में दिखेगा ना, ये देखिए हमने अपना जो कोड देखा है ये वाला कोड DGL, हम DGL में देख रहे हैं कॉलम 7 लिमिटेड क्वांटिटीज एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज। अब एग्जम्प्टेड क्वांटिटीज यहाँ पे इस कार्गो का 0 कह रहा है, इसका वो कह रहा है यस 60 या 80, E0 नॉट 60-80, यहाँ पे लिखा उसने E0 मीन्स नॉट अलाउड। एग्जम्प्टेड क्वांटिटी भी अलाउड नहीं है, लिमिटेड में भी अलाउड नहीं है, तो इसको तो नॉर्मल कंडीशन लगेगी सेग्रीगेशन की। यहाँ पे वो देता है E2, यहाँ पे था भी लिमिटेड क्वांटिटीज 1 लीटर होनी चाहिए, यहाँ पे वो कहता है E2। तो E2 का मीनिंग क्या हुआ, E2 मीन्स मैक्सिमम नेट क्वांटिटी पर इनर पैकिंग 30 ml या 30 ग्राम्स एंड मैक्सिमम आउटर पैकिंग 500 ग्राम्स या 500 लीटर मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 500 ग्राम। तो ये आपका थोड़ी सी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस वो पूछे कि सर लिमिटेड क्वांटिटी एग्जम्प्टेड क्वांटिटी, जितना भी आपको समझ आए कि यस इसके फायदे यही हैं कि यस दिस इज बिकॉज IMDG कोड ग्रांट्स एग्जम्पशंस to some of the requirements of goods that are packed in limited quantities or exempted quantities. For example, segregation requirement as per IMDG code is not applicable to dangerous goods packed as per limited or exempted quantities. So I hope this is clear and this is all we have for the, तो मैं नोट्स आपको भेजूंगा, प्लीज़ इसको पढ़िए, ठीक है। मैं इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ताकि आपको इजी टू स्टडी, इजी टू, तो बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं
वो चीज़ आपने जरूर देखनी। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन टेबल क्या है, सेग्रीगेशन टर्म्स क्या होती हैं, अवे फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम, एंड EMS, MFAG, यही इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए। सो आई विल सेंड यू, जैसे जैसे आपको कुछ डाउट आता है तो वी विल सी। चलो ठीक है, तो ये आपका था DG का। लेट्स सी नेक्स्ट, थोड़ा विंड के बारे में भी पढ़ें। विंड का था कि ये जो आपकी विंड बेसिकली जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स है क्या चीज़। डेली यू सी आपको ये सर्कुलेशन दिखती है। अगर हमारी अर्थ जो है, इफ़ इट वाज जस्ट वाटर, इफ जस्ट ओशियन थे, लैंड ना होती, तब तो ये विंड सर्कुलेशन जो है बहुत रेगुलर होनी थी। ये इक्वेटर है, इस पे ये ट्रेड विंड्स होनी थी, ये वेस्टर्ली विंड्स, तो ये रेगुलर अफेयर बिल्कुल जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक होना था। बट आर अर्थ कंसिस्ट ऑफ ओशियन, सीज एंड बिग लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट्स भी हैं बीच, ह्यूज लैंड मासेस आर देयर। एंड सिंपल से कहते हैं ना, टू अंडरस्टैंड दिस मेट्रोलॉजी, किया दिस लैंड एंड वाटर, यू हैव स्टडीड फिजिक्स, इनकी जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो भी अनइक्वल है। Different water gets cooled or heated up in a different way, land gets heated up and cooled in a different way. This is the cause of all your circulation of winds. And इन सबको करने वाला कौन है, हमारे सूर्य देवता, isn't it? Why? Because वो कहीं पे ज्यादा हीट देते हैं, कहीं पे कम देते हैं। इक्वेटर इज ऑल द टाइम हीटेड अप, पोल्स में उतनी सनरेज नहीं जाती, तो यहाँ पे आपकी जो हवा है वो ठंडी है, यहाँ पे गर्म है। so this unequal heating जो है, this creates all your wind circulation. Now winds are comparatively, if you see this, uniform in longitudinal belts extending around the world. Some exceptions are there. Doldrums, what we call near the equator, the belt of variable and mainly light winds, 0 to 10 degrees north, 0 to 10 degrees south. This belt is known as ITCZ या doldrums. So मोस्टली यहाँ पे वेदर जो है डिस्टर्ब रहता है। समटाइम यू हैव लाइट विंड, सडनली समटाइम यू हैव थंडरस्टॉर्म्स, उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, टू द नॉर्थ ऑफ दिस, रफली बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ, लाइज द बेल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। सो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक यू हैव अ जोन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स। And further north lies a belt of light and variable 30 to 40 degree. We have again a small belt of variables, and then 40 to 63 again if you go, you have a wide belt of westerly, जहाँ पे जो wind direction है very strongly westerly winds blow. And then 63 to 65 again some variables, and further up north you have polar easterlies, जिसकी observation कम है because there is very less shipping there. उससे हमने ज़्यादा नहीं, या इतना हमें पढ़ना है बिकॉज इन एरियाज में आर शिप्स वी आर सपोज टू गो। अब ये अगर आप देखिए, दिस जनरल सर्कुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट लुक्स लाइक दिस। ये आपके डोलड्रम्स आ गए सेंटर में, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या सीमेंस लैंग्वेज में हम इसे डोलड्रम्स बोलते हैं। मीन्स द वेदर इज इन डोलड्रम्स, कुछ पता नहीं वेदर को, कभी अच्छा हो जाएगा कभी खराब हो जाएगा। एंड 10 to 30 डिग्री यू हैव दिस ट्रेड विंड्स। In northern hemisphere, their direction is northeasterly. Southern hemisphere, their direction is southeasterly. Please remember, the wind is always the direction it is coming from. Then again 30 to 40, सब variables. Calm weather भी हो सकता है, variable weather. And then 40 to 63, you have again a westerly zones. It's called the westerlies. And similarly on top you have polar easterlies. अब इनको थोड़ा सा अगर हम पढ़ते हैं कि डोलड्रम क्या है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डोलड्रम्स, ट्रेड विंड्स, मॉनसून्स, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ये हाउ दिस थिंग्स और हाउ दिस विंड्स फॉर्म। सो डोलड्रम, जोन ऑफ लाइट वेरिएबल विंड्स एसोसिएटेड विद रेन, थंडरस्टॉर्म, ऑक्यूपाई नैरो बेल्ट बिटवीन इक्वेटर टू 12 डिग्री, वेरीज विद लॉन्गिट्यूड एंड सीजन्स। तो ये जो बेल्ट है, ये नहीं है कि एक पक्की लाइन लगा दी कि 0 से लेके 10 तक ये डोलड्रम और ITCZ रहेगा। दिस कीप्स ऑन वेरिंग, व्हाई? बिकॉज सन कीप्स ऑन मूविंग, नॉर्दर्न सदर्ली डिक्लिनेशन पे जाते रहता है सन, इजंट इट? सो जैसे जैसे सीजन चेंज होंगे तो ये बेल्ट जो है ये भी चेंज होती रहती है। नाउ
अगेन सेलिंग वेसल के लिए थोड़ा रिस्क होता था, क्यों? समटाइम काम वेदर हो गया, नो विंड, तो सेलिंग वेसल तो खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। 2 दिन भी अगर विंड नहीं मिली तो उसका तो बेचारे का पानी खाना सब खत्म हो जाएगा, जब स्टेशनरी कैनॉट मूव। And then, because of prolonged heating over the equatorial ocean, some of the air finally ascends vertically. अब ये जो डोलड्रम है, ये ITCZ है, जिसे हम कहते हैं, it is again known with the ITCZ also, same as doldrums, that is meeting place of trade winds of north and southern hemisphere. Northern southern hemisphere की आप आपने इसमें देखा है कि ये दोनों winds जो different direction की winds basically are meeting here in this ITCZ, that's why it's called intertropical convergence zone. इसके लिए वेदर भी थोड़ा काम भी होता है बट खराब भी रहता है. So whereas doldrum is particularly used for tropical region of light winds, ITCZ was formerly known as intertropical front, but अभी उसका नाम ITCZ है. The name was changed because of the vague and variable character of the accompanying weather. तो ITCZ and doldrums notes लिखने को आए, you can read enough and आप उसको लिख सकते हो. अब ये जो है it keeps on shifting. Now you see this ITCZ in January, आपका ये ITCZ ऐसा दिखता है. इन द सेम जुलाई यू सी इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी लोकेशन जो है चेंज हो जाती है ड्यू टू द सन्स नॉर्दर्ली डिक्लिनेशन. नाउ ट्रेड विंड्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर अराउंड द इक्वेटर राइजेस. नाउ अगर आपको मैं ये पिक्चर ही दिखाऊं, इसी पे देखिए, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर ऑल द टाइम सन इज राइजिंग, सन इज देयर. तो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी. जैसे हवा गर्म होगी इट विल स्टार्ट राइजिंग, इजंट इट? एंड जैसे ही वो राइज करेगी तो उसको क्या होगा? व्हेन द एयर स्टार्ट्स राइजिंग तो क्या होता है? एक तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, इजंट इट? सेकेंड, यू हैव अ कैरोलीज फोर्स, वो भी इसको राइट को डिफ्लेक्ट करेगी. एंड जैसे जैसे ये राइज करेगी इसका टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग. एंड जैसे टेम्परेचर गिरा है ना, यहाँ इस लैटिट्यूड तक पहुंची, इट विल स्टार्ट सिंकिंग बैक. अभी गर्म तो रही नहीं, इसका टेम्परेचर हैज फॉलन, so then this air which is rising from this equator starts sinking back. When it starts, a part of this wind which is sinking back, अब वो जब वापस नीचे आएगी तो it is coming in this direction. And now we have studied the equator, this Carolis force. So when it is coming down from north, so Carolis force इसको right को deflect करेगी. तो इसकी direction जो है नीचे आते वक्त north की बजाय north east होनी शुरू हो जाती है. So that's why this wind slightly starts getting deflected by Carolis force, and then this wind starts blowing from northeast direction. And ये बहुत regular and very consistent wind है over the oceans. In the northern hemisphere, this northeasterly winds, that's why they are called, now why they are called trade winds, because in the olden time the sailing ships used to take advantage of this, because consistently it will blow from northeast to east direction से blow करेगी और sailing ship को east से west ले जाने में help करती थी. एंड जब उन्होंने वेस्ट से ईस्ट आना है, देन दे यूज्ड टू फॉलो दिस हायर लैटिट्यूड जहाँ पे वेस्टर्ली विंड है. अब यही जो विंड आपकी यहाँ से राइज की गर्म होके, पार्ट ऑफ इट इज सिंकिंग बिलो एंड देन चेंजिंग डायरेक्शन, पार्ट ऑफ इट इज नॉट सिंकिंग बट जस्ट गोइंग अप. तो इस लैटिट्यूड से ऊपर जाएगी. अभी क्या होगा? कैरोलिस फोर्स उसको राइट को डिफ्लेक्ट करेगी. नाउ इट इज राइजिंग फ्रॉम हियर, स्टिल गोइंग अप एंड गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट. सो आपको जो विंड डायरेक्शन है, it will look as if it is coming from west. So ये strong westerly बन जाती है. So this is basically आपकी जो trade winds है. So trade winds in the northern hemisphere, warm air around the equator rises, flows north toward the pole. As the air moves away from the equator, the Carolis effect deflects it towards the right. It cools and descends near 30° north. This descending air blows from northeast to southwest back towards the equator. A similar wind pattern occurs in the southern hemisphere. So these prevailing winds, known as trade winds, meet at ITCZ.
मानसून बिकॉज अब यहाँ पे जो आपके लैंड मासीज हैं वो इस नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड की डायरेक्शन को थोड़ा बदल देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मासीज। तो ये तो आपकी रही ट्रेड विंड्स। नाउ दिस इज अ समरी, सेम थिंग। वेरिएबल्स, ट्रेड विंड के ऊपर 30 to 40 डिग्रीज ऑफ वेरिएबल्स हैं। दैट इज ऑल्सो ओवर द एरियाज कवर्ड बाय ओशियनिक एंटी साइक्लोन्स, वहाँ पे आपका वेदर ऑलमोस्ट वेरिएबल रहता है। वेस्टर्लीज हमने देख लिया, द विंड विच इज नॉट रिटर्निंग बैक टू इक्वेटर, इट इज फर्दर गोइंग अप, दिस बिकम्स अ westerly winds. Unless like trade winds, these winds are also known as westerlies, are far from permanent. So the continual passage of depression from west. So ऊपर के जो higher latitudes हैं, wind direction can be westerly, but there are a lot of depressions taking place. तो वहाँ पे भी gales are frequent, especially in the higher latitudes. Weather changes rapidly. So south of 40 degree आपका जो एरिया है वहाँ पे भी द winds are very strong because of the gales, so it is known as roaring 40s. So 40 to 50 degrees जो आपके latitude है in the southern hemisphere, the wind actually makes a roaring noise, lot of noise. जैसे अभी कभी आपने देखा हो when the strong wind blows, even on land also you can hear a very threatening voice, roaring 40s उसे कहते हैं. Polar easterlies not much because we don't have. अब आपका आ गया सीजनल विंड्स और व्हाट वी कॉल द मॉनसून्स। अब ओवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ ओशियन द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब ये मॉनसून्स क्यों टेक प्लेस करता है? एनीबडी एनी आइडिया हाउ दिस मॉनसून्स फॉर्म? क्विकली एनीबडी? बोलिए यार, किसी को नहीं आइडिया? नो आइडिया? थोड़ा बहुत तो होगा यार, मॉनसून्स तो कितने टाइम से हम बारिश देखते हैं, ये कैसे फॉर्म होती है? चलो, ये जो अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग, अभी आप देखिए समर्स में क्या होगा। समर्स में आपकी जो लैंड इट गेट्स हीटेड अप, स्पेशली योर एशिया कॉन्टिनेंट। एंड हमने देखा है कि व्हेन द लैंड गेट्स हीटेड अप तो क्या होगा? द एयर स्टार्ट्स राइजिंग, इजंट इट? जैसे वो राइज करेगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। So slowly this is happening now. When the summers come, the land starts getting heated up and low pressure will be created. Now when this low pressure is created, तब आपको how this thing looks like. अब अगर आप देखिए तो आपका जो कॉन्टिनेंट है, now this एशिया कॉन्टिनेंट जो है, अब ये लैंड गर्म होगी तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दिस लो प्रेशर इज सेंटर्ड हियर। यहाँ पे एक बहुत very low pressure gets created here due to the extreme heat, extreme warming up of the land. अब यहाँ पे जब लो प्रेशर होगा तो बाकी एरिया से जो विंड है that will start blowing towards this area. एक्चुअली आपकी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं विच आर ब्लोइंग बिलो 0 डिग्री, दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या? साउथ ईस्ट। तो ये सारी की सारी विंड्स थ्रू योर अरेबियन सी दे स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर की तरफ ब्लो करना शुरू करेंगे। व्हेन दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आएगी तो जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो क्या होगा? कैरोलीज फोर्स इसको राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, isn't it? So slowly you find after crossing the equator, their direction they get deflected towards right. So their direction changes from southeast to north and then to southwest. So आपको जो wind है ये सारी की सारी southwesterly direction से लगती है, and now it is coming over the ocean. It is saturated, fully saturated with water vapor. And यहाँ पे ये जैसे इसको obstruction मिलेगी, it starts rising. Same thing, it gets cooled below dew point and heavy rains. तो ये तो आपकी हो गई साउथ वेस्ट मानसून। बिकॉज ऑफ ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो साउथ ईस्ट ट्रेड्स हैं दे स्टार्ट ब्लोइंग दिस वे एंड इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड सिमिलरली इफ यू सी द नॉर्थ ईस्ट मानसून, अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? समर्स में तो हमने देख लिया लो प्रेशर गेट सिचुएटेड नियर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब विंटर में क्या होगा? द लैंड गेट्स कूल्ड एंड यहाँ पे जैसे वो कूलिंग होगी
So there is a high pressure. Now this high pressure is situated here in Siberia. And यहाँ पे high pressure है, यहाँ पे again low pressure on the sea side. So ये जो winds हैं they start blowing from high pressure towards the low pressure. इनकी direction जो है आपको northeasterly. So that's why we see in the South China Sea especially and Bay of Bengal, these winds bring heavy rain. So this is basically your northeast monsoon. So northeast monsoon के लिए भी कहता है in Bay of Bengal and Arabian Sea. If you see this, rainfall of Shari type is likely on the windward coast, especially in the China Sea, as the air is polar origin and relatively humidity will be low. The northeast monsoon becomes established from December to April. So when you go to South China Sea in December to April, so you find heavy rain due to the northeast monsoons. Wind direction भी northeasterly होती है, swell sea सबकी direction northeasterly है, and lot of time you have typhoons also because of this change in monsoon pattern. So during summer, the Asia continent is warmed and high pressure over Siberia declines and replaced by low pressure over northwest India. So this pressure gradient between high pressure over the South Indian Ocean and low over Africa and India, this causing these southeast trades to blow up to equator, and on crossing it, the wind near the African coast circulates around low over Africa and brings rainfall to East Africa as well as to India. So ये आपका दोनों का मॉनसून regime है. So please इसको पढ़िए, and if you आपको क्वेश्चन आता है, try to make this, जितनी भी आपकी ड्राइंग है, at least show this, the high pressure here in the winters and low pressure in northwest India in the summers. So ये तो आपकी मॉनसून regime हो गया कि how this northeast and southwest monsoons they blow. अब लैंड एंड सी ब्रीजेस वो इन्हीं का ही पार्ट है. Now land and sea breezes, the regular alteration of land and sea breezes is well known feature of most tropical and subtropical coasts. क्यों? These breezes also occur at times in temperate latitudes in fine weather. Now इनका cause क्या? How these land and sea breezes form? The cause of these breezes is unequal heating and cooling of the land and sea. वही factor same. So by day, the surface of the land rapidly acquires heat from the sun, whereas the sea temperature remains virtually unaffected. So अब आपका जहाँ पे sea है उसके साथ coastal area जो है, जो land होगी, that will get warmed up during the day, isn't it? And whereas आपका जो sea है उसका तो इतना नहीं. So as the land is heated up during the day, decrease in the sea temperature remains more or less the same, and the pressure over it is high compared with that of the land. So high pressure से over the sea जो winds हैं, they start blowing towards the land where there is a low pressure, and we call it a sea breeze because it is coming from the sea. So ये आपका sea breeze का formation है, especially the coastal areas. Now after the sunset क्या होगा? Land will start becoming cooler. So वो इतनी ठंडी हो जाएगी, diurnal variation आपने देखी है, it will become cooler than the sea. अब जब cool होगी तो उसके ऊपर high pressure हो जाएगा, whereas sea में जो pressure है उतना ही रहेगा. Now the wind will start blowing from this high pressure which is created over the land towards the sea. So we call it a land breeze. Now land breeze usually sets in after the sunset and continues until the dawn. So land breeze is normally light compared to the sea breeze. Now sea breeze is basically in the afternoon, you see this, especially even in Bombay and all, if you are anchored, you see in the afternoon around 2-3 o'clock, a very strong wind starts blowing. The sea breeze starts blowing towards the coastal areas. The sea breeze usually sets in late in the forenoon and reach maximum strength about 4-5 or 6 around 2 o'clock, and it dies down around sunset. So land breeze basically just after the sunset. So effect of these breezes is to deviate the prevailing wind, reinforce and neutralize or even reverse it. So ये आपकी land and sea breezes हैं. Monsoons आपने देख लिया. Favorable factors, land and sea breeze का अगर आपको question आए, so you have enough to write कि what is this land breeze, sea breeze. इसके लिए factors क्या क्या हैं? When this land breeze will start or when
sea breeze will start. Dry desert coast opposed to forest or swamps, high ground near the coast, weak prevailing wind, clear or partly cloudy sky, and cold current along the coast. And small islands less than 5 to 10 miles in diameter will not usually produce land or sea breezes. तो ये आपके factors हैं. So similarly आपकी katabatic and anabatic winds. इनमें थोड़ा सा फर्क है. Katabatic is basically means downhill. Kata means coming down. So on clear nights, land surface gives off its heat into space very quickly, resulting in a cold layer of air near the land surface. तो जब ये cold layer होगी, and if there is a hilly area, if there is a strong hill, the ground is sloping, the cold air at the land surface will be colder than the adjacent area over the sea. तो ये जो cold air है, by gravity it will start coming down towards the sea. So if we call it a katabatic wind. So when the mountain is high, the slope is steep. These winds can reach sea level with a wind force as much as wind force Beaufort scale 7. Katabatic wind again, high mountains is a one condition, and रात को temperature जो है ठंडा होगा. Then these winds by the due to the gravitational force they come down with a tremendous force, and because of their sudden onset, great force, they are a menace to small craft. छोटी छोटी जो आपकी प्लेजर यॉट्स हैं, छोटी बोट्स हैं, उनको ये इवन टर्न ओवर भी कर सकते हैं बिकॉज दे ब्लो विद अ वेरी ट्रिमेंडस स्पीड. एनाबैटिक थोड़ा अपोजिट है. एना मीन्स अप. सो ड्यूरिंग द डे द लैंड सरफेस गेट्स हीटेड अप क्विकली, रिजल्टिंग इन लेयर ऑफ वार्म एयर नेक्स्ट टू द लैंड सरफेस. लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. सो इनसाइड अ वैली द एयर नियर द लैंड सरफेस इज relatively warmer. So this relatively colder air thereby displaces the warmer air out of the valley. So अगर वहाँ पे valley है तो ये जो cold air उसको displace करेगी, sliding it gently up the mountain side. So we call it a anabatic wind. So these are basically your katabatic and anabatic winds. And उसके साथ आपने देख लिया land and sea breezes. Okay. So इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं. Monsoons, katabatic, land breeze, sea breeze, and आपने ये what we call this trade winds, उसकी फॉर्मेशन भी देख ली. So थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए. I think it is enough for your level. अगर आपको समझ आ गया then it is good. चलो, any questions from anybody? So far all good? Yes. चलो ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और उसके भी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा डीजी के, तो उसको प्लीज़ पढ़िए. वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डीजी का. तो उसके अंदर स्पेशली पास्ट पेपर्स में भी देखिए. सो यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स. मैं आपको नोट्स भेजूंगा. पढ़ना आपके ऊपर है, याद करना एंड देन उसको रिप्रोड्यूस करना. ठीक है. तो आज के लिए आई थिंक वी हैव ओनली वन क्लास ना टुडे. यस सर. Yes, only one class. चलो ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव टुमारो. So we will see this when we are carrying this DG. उसको थोड़ा सा और उसकी डेक वॉच, हम कल थोड़ा डेक वॉचेस ले लेंगे कि अगर इफ़ आई एम कैरिंग DG कार्गो और अदरवाइज ऑल्सो इन अ नॉर्मल वॉच, कि अगर मैं रखता हूँ डेक वॉच में एज अ ड्यूटी ऑफिसर, तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. अब थोड़ा सा डिटेल में वी विल स्टडी. तब आपको पता लगेगा यार एक्चुअली वॉच कीपिंग क्या है, रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं, लीगैलिटी क्या है उसकी, कैसे उसको करना है. ओके. तो ये चीज़ हम देख लेंगे थोड़ी सी विद द कल की क्लास में. कल आई थिंक यस वी हैव 1 or 2 क्लासेस विद यू. इसको करके देन वी सी नेक्स्ट वी गो टू द बल्क कार्गो. चलो आज के लिए बच्चे ओके इनफ. सो टेक केयर. आई थिंक आपका नेक्स्ट क्लास इज आफ्टर लंच. नहीं सर, एक और है पहले, लंच से पहले एक और है. अच्छा, एक क्लास और है. यस, लंच से पहले. चलो ठीक है, इसके नोट्स भेज दूंगा, पढ़ लेना. एनीथिंग यू नीड प्लीज लेट मी नो. ओके देन आई एम लिविंग. ऑल राइट. थैंक यू सर. या ओके बच्चे, बाय बाय, वेलकम.